और आपको सीधे लिए चलते हैं महाकाल की नगरी उज्जैन, जहां पर जो है रीजनल इन्वेस्टर्स समिट में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की है। Opportunity and explore the potential that Madhya Pradesh holds for the businesses. Once again, I extend my warm welcome to all the guests and investors. I wish you a productive and successful conclave ahead. Thank you. Thank you very much, ma'am. And ladies and gentlemen, our Chief Secretary, Madam, shared with you the immense investment opportunities which are there in the state of Madhya Pradesh. But as they say, seeing is more believing. So we now bring you a short film which showcases the untapped potential of the state of Madhya Pradesh, which is waiting to be harnessed by trailblazers and visionaries like all of you. We now view in this short film. From the golden age to Amrit Kal, Ujjain has a place of pride in the historical, cultural and spiritual heritage of India. It was the capital of the great Emperor Chandragupta Vikramaditya. Ujjain's geographic location has made it an important place from astrological perspective and is also known as Greenwich of India. The crowning glory of Ujjain is the Mahakaleshwar, the most revered amongst the 12 Jyotirlingas. Mahakal Lok has attracted footfall of 181.6 lakh people in 2022, which is 1800% over the previous years. ujjain ने हजारों वर्षों तक भारत की संपन्नता और समृद्धि का, ज्ञान और गरिमा का, सभ्यता और साहित्य का नेतृत्व किया है। Ujjain's ethereal energy transmits itself in the form of the spirit of entrepreneurship and enterprise, enriching and empowering its home state, Madhya Pradesh, the pulsating heart of India. Fueling boundless yet sustainable industrial growth, the state offers more than 1.25 lakh acres of industrial land bank, surplus quality power, abundant industrial water supply, and highly skilled labor. Strategically located and well-networked, MP provides unique access to a vast consumer base and is a natural master warehouse of India. The state is the largest producer of soya, pulses, oil seeds, coriander, garlic, orange, and has 2,200 varieties of medicinal plants and has won the Krishi Karman Award 7 times in a row. The only diamond producing state of India, Madhya Pradesh has leveraged its mineral wealth to build industries like cement and power and has an untapped potential to be explored. MP produces over 40% of India's organic cotton, and the presence of more than 60 large textile mills and millions of spindles weave together a testament of growth and empowerment of women. MP is home to Asia's longest high-speed testing track and a vibrant auto and engineering cluster with 30 plus original equipment manufacturers and 200 plus auto component manufacturers. MP's pharma and health sciences sector has grown by leaps and bounds and is one of the largest in India. The medical devices park at Ujjain will ensure localization of the global value chains. India's cleanest state with cleanest capital city, Bhopal, is also home to India's cleanest city, Indore, which is the next IT hub and offers ease of living. This rich resource base of the state, especially the Malwa region, together its enterprising spirit, offers tremendous investment opportunities. Madhya Pradesh, known for its UNESCO heritage sites, wildlife reserves and adventure destinations, has become a global tourist hotspot owing
to its rich cultural heritage and diverse landscapes. A committed government under the leadership of Honorable Chief Minister with business-friendly policies and a consistently peaceful work environment, MP's flight to prosperity has taken a new leap. Madhya Pradesh isn't simply at the center of India, it is at the center of tomorrow. Welcome to Madhya Pradesh, the future-ready state. तो देवी सज्जनों, मध्य प्रदेश जो हमेशा से अपनी इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, विविधता और वैभव के लिए जाना जाता था, टुडे इट इज अ लैंड व्हिच इज टीमिंग विद अपॉर्चुनिटीज ऑफ ग्रोथ, इनोवेशन, पीस, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी। और अब मध्य प्रदेश में अपार निवेश संभावनाओं और मध्य प्रदेश की निवेश नीति पर आपको विस्तृत जानकारी देते हैं और मैं निवेदन करती हूं श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी से, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द सीएम एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी DIPIP से। जय श्री महाकाल। मैं भगवान शिव के चरणों में पहले प्रणाम करके अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। मंच पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मंच पर हमें मार्गदर्शन देने के लिए उपस्थित माननीय मंत्री द्वय चैतन्य कश्यप साहब, धर्मेंद्र लोधी साहब, मंच पर विराजमान बिजनेस की दुनिया के लीडर्स और काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हमारे इंडस्ट्रीज, इकॉनमी, इस सेक्टर के जो लोग यहाँ पे हैं, मैं सभी का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। सो लेट मी स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन। आई नो दैट वी आर ऑलरेडी डिलेड बाय 1.5 hours, so I will try to be as quick as possible. So you know that Madhya Pradesh is a state which is second largest state in terms of area, and it has got huge potential as it's a huge market, and we have fifth largest population in entire country. GSDP of Madhya Pradesh is around 13.2 lakh crores. And if we see the GSDP growth rate of previous year on current prices is around 16.4%, one of the highest in entire country. Now you know that the kind of growth we have achieved in last 2 decades is phenomenal, and we have risen from per capita income of 11,000 rupees per year to 1.4 lakh rupees per year. So we have got a fantastic industrial ecosystem in Madhya Pradesh. We have more than 2.3 lakhs large manufacturing industries as well as MSME units. We have created around 17 lakh direct jobs in manufacturing, 58 lakh indirect jobs through manufacturing. We have around 320 notified industrial areas in the state, and at present we have more than 1.25 lakh acres of industrial area available for development. You know that we have excellent road network which is more than 5 lakh kilometers. We have 20 major railway junctions, stations, 6 ICTs, inland container depots, and you must be aware that Madhya Pradesh has become a kind of power surplus state, and we are generating more than 29,000 megawatt of electricity. We have also reserved more than 1,000 million cubic meter of water for industrial purpose. So not only that we do have excellent existing infrastructure, but we are also in the process of investing in a very huge way in creating a new kind of infrastructure. So this is the map which shows that Delhi-Mumbai investment corridor passes through in Madhya Pradesh. Delhi-Mumbai expressway is also planned, designed. Delhi-Nagpur investment corridor is a new thing that is going to come up. We have also declared our intention to create Narmada expressway as well as Atal Progressway and East-West corridor. So
Government of Madhya Pradesh is going to create a huge network of roads in entire state with support of naturally Government of India has supported us wholeheartedly in this effort. Now, as I was telling regarding robust infrastructure, in last 3 years we have created 27 new industrial areas covering around more than 9,000 acres of land, and we have spent around 2,500 crore rupees. We are also retrofitting our industrial areas with 6,000 crores of budget. So we are developing, we are aware that in case of industries, we always say that it's a kind of a chicken and egg problem, but we are not waiting for the eggs to come, but we have we are investing hugely in industrial infrastructure in previous 3-4 years. Government of India is also supporting us wholeheartedly, as you will see in this particular map. We have one medical devices park at Vikram Udyogpuri in Ujjain, one PM Mitra park, a big textile park in Dhar, which is going to be created with support of the central government, manufacturing zone for power and renewable energy equipment at Narmadapuram, mega leather footwear and accessories cluster development park at Sidapur Morena, plastic park in Raisen in Bilawa Gwalior, and multimodal logistic park in Pithampur. So nearly 2,860 crores of GOI funded projects are going to be operated in Madhya Pradesh. As you are aware that why one should choose Madhya Pradesh as a destination. So you may be aware that Madhya Pradesh is one of those leading states which has always topped the charts of ease of doing business in our country. You can start your business in 30 days. Land allotment is GIS based, and there is a 3 years exemption for approval in some specified cases. And we have got one investment portal which is interlinked with the National Single Window System of GOI. Now this is a very interesting slide. You may see that ease of living in case of Madhya Pradesh when compared with other states is quite low. You can see on your own because in case of purchasing power parity comparison with other states, you will find that labor is cheap here, the cost of living is cheap here. So business operations would cost very low in case of Madhya Pradesh rather than other states. We have investor-friendly policies. We provide capital subsidy up to 40% in plant and machinery. We have also created a kind of system where subsidy. तो देखिए यहाँ पे इन्वेस्टर्स समिट, रीजनल इन्वेस्टर्स समिट का जो है आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद है। निवेशकों से मुख्यमंत्री 1-to-1 चर्चा करेंगे। कालिदास एकेडमी में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहां पर उज्जैन में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन 1 और 2 मार्च को 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन। You may see that ease of living in case of Madhya Pradesh when compared with other states is quite low. You can see on your own because in case of purchasing power parity comparison with other states, you will find that labor is cheap here, the cost of living is cheap here. So business operations would cost very low in case of Madhya Pradesh rather than other states. We have investor-friendly policies. We provide capital subsidy up to 40% in plant and machinery. We have also created a kind of system where subsidy is linked with employment generation, export potential, and geographically if something is beyond our core industrial areas. So there are multipliers for capital subsidies also. So we do have additional incentives for some of the sectors in case of processing units, and you will see that in case of textile also we have additional incentives in our policy.
Madhya Pradesh has got a fantastic MP renewable energy policy in 2022. We have given 10 years of exemption on electricity duty and energy development cess, 50% waiver on wheeling charges and concessional rate government land. We have good policy on IT, ITES, ESDM investment promotion with regard to capital subsidy, environment, employment subsidy, interest subsidy and various other power subsidies. Now, these are the competitive factors of production, and when you compare Madhya Pradesh with other states regarding land rates, you will find that it is one of the cheapest in the entire country. Power rates are also 6.4 rupees to 7.26 rupees per unit, one of the cheapest in entire country. Industrial water rates rupees 20 per kiloliter KLD per day, that is also one of the cheapest in India. And minimum wages are very low in case of Madhya Pradesh, though we would like to increase those wages for the laborers. Now, we have also got a fantastic MSME ecosystem. We have more than 11 lakh registered MSMEs. Each district in Madhya Pradesh has got a dedicated industrial area. MSME department has got more than 6,500 hectares of land for allotment. There are 15 new industrial area which is going to come up on 328 hectares of land. And 1,500 hectares or more is available for industrial use in MSME sector. We have also one of the pioneers in startups in country. We have got a good startup policy. We have more than 3,900 recognized startups, and out of those 1,800 startups are led by women. We have 68 statewide incubators, and we have also given a kind of dedicated expert support in case somebody requires support in startup for marketing, legal issues and financial issues. So this is all from my side. I will just say one thing. जैसे दुष्यंत कुमार जी ने कहा था कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, और वही एफर्ट एक माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश ने एकदम नए सिरे से शुरू किया है। और कोशिश यही की जा रही है कि जिस तरह से स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं, जैसा इन्विक्टस पोएट्री में लिखा गया है कि आई एम मास्टर ऑफ माई सोल, आई एम कैप्टन ऑफ माई सोल, उसी तरह से मैं कहूँगा कि जैन की इस धरती पे महाकाल के आशीर्वाद से और माननीय मुख्यमंत्री जी के डिसाइसिव जो उनका कार्य करने की प्रणाली है और जो उनके अंदर का जो जज्बा और मेहनत करने का जो उनके अंदर जज्बा है, उन दोनों इन सभी चीज़ों को मिला के मध्य प्रदेश का ये इन्वेस्टमेंट यहाँ रीजनल इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव बहुत ही बड़ी ऊंचाइयों तक और सफलता तक पहुँचेगा। आप सभी के आने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर। और देवी सज्जनों, इस सभागार में हमारे साथ इस कॉन्क्लेव में भाग लेने के लिए और इस फ्यूचर रेडी स्टेट में निवेश करने के लिए 650 से ज़्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट उपस्थित हैं। उनमें से कुछ हमारे साथ यहाँ पर मंच पर हैं, तो आइए उनके विचारों को और यहाँ पर उनके निवेश की प्रतिबद्धताओं को आमंत्रित करते हैं। इस कड़ी में सबसे पहले मैं निवेदन करती हूँ श्री विपुल माथुर जी को, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO वेल्सपन। May I request you, sir, for your address. Honorable Chief Minister, Honorable Minister MSME, the industry captains, dear friends. My name is Vipul Mathur and I am the Managing Director and CEO for Welspun Corp. हमारी जर्नी मध्य प्रदेश के अंदर 2018 में स्टार्ट हुई, जब हमने यहाँ पे अपना पहला इन्वेस्टमेंट किया आके एक लार्ज डायमीटर स्टील प्लांट के अंदर, पाइप प्लांट के अंदर रायसीना डिस्ट्रिक्ट में। और तब से और आज तक की ये जर्नी एक बहुत ही इनक्रेडिबल जर्नी रही है हमारे लिए। द
ecosystem and the environment friendly policies and the support what we have got from the government and the departments has been incredible. आज हम इंडिया के करीब करीब 8 से 9 स्टेट्स में काम करते हैं और मुझे कहने में कोई कोताही नहीं है कि जिस हिसाब से हमको इस यहाँ के इन्वेस्टमेंट को जो हमको सपोर्ट दिया गया है, be in terms of land, be in terms of manpower, be in terms of water, electricity, everything. I think so that journey has been very, very incredible. अभी रिसेंटली आप लोग ने ध्यान दिया होगा, वेल्सपन ने एक आइकॉनिक ब्रांड सिंटेक्स को एक्वायर किया, घर की टंकी सिंटेक्स, सिनोमिनस। अब जब हम उसकी एक्सपेंशन जर्नी के ऊपर हम जब फोकस कर रहे हैं, तब सबसे पहला ध्यान हमारा मध्य प्रदेश पे गया और जिस हिसाब से डायनेमिक लीडरशिप है यहाँ पे, जिस हिसाब की यहाँ की पॉलिसीज है और जिस हिसाब से जो एक कर्मयोगी सीएम है यहाँ पर, जिनकी एक रेपुटेशन कर्मयोगी की है, दैट इज इंड्यूसिंग अस टू पुट आवर फर्स्ट स्टेप इन दिस स्टेट। तो हम आज यहाँ पर अपने एक नए प्लांट का भूमि पूजन करने के लिए हम लोग ने माननीय सीएम से रिक्वेस्ट किया था एंड ही हैज काइंडली कंसेंटेड। और सर, हम आपको एक चीज ये बताना चाहते हैं कि जब हम 2018 में यहाँ पर आए थे तो 10 महीने के अंदर हमने उस प्लांट को स्टार्ट किया था। तो ये नहीं है कि हम सिर्फ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने आए हैं और 2-3 साल के अंदर यहाँ पे काम शुरू होगा। ये हमारा आपके साथ प्रॉमिस है सर कि जब आप आज यहाँ पे आज भूमि पूजन करेंगे तो इस साल के अंत में सर हम आपको दोबारा इनवाइट करेंगे प्लांट को इनॉग्रेट करने के लिए। हमें बहुत ही विश्वास है कि ये एक तो ये जो जर्नी स्टार्ट हो रही है, ये उज्जैन से स्टार्ट हो रही है, बहुत ही पावन धरती से ये काम स्टार्ट हो रहा है और ये हमारे ग्रोथ के अंदर एक बहुत ही एक नींव का पत्थर और एक माइलस्टोन एस्टैब्लिश होगा। एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल फॉर द MPIDC and the government of Madhya Pradesh for giving us this incredible opportunity to participate and address this gathering. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद सर, माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्प और प्रतिबद्धता में अपना अटूट विश्वास दिखाने के लिए। और अब मैं निवेदन करती हूँ श्री विनोद अग्रवाल जी को, मैनेजिंग डायरेक्टर CEO VE कमर्शियल व्हीकल्स आयशर मोटर्स। Honorable Chief Minister Dr. Mohan Yadav ji, Honorable Minister MSME Chaitanya Kashyap जी, अन्य मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के सीनियर ऑफिसर्स और इंडस्ट्री के हमारे कोलीग्स और लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने 90 दिन के कार्यकाल में ही इन्वेस्ट मध्य प्रदेश का ये जो रीजनल कन्क्लेव रखा है, तो एक बहुत बड़ा मैसेज है पूरी इंडस्ट्री के लिए कि हमारे जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं वो इंडस्ट्री के प्रति कितना प्रतिबद्ध हैं और कितना कमिटेड हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत पॉजिटिव मैसेज है, तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। दूसरी चीज, मैं 2-3 चीजें इस मौके पे बताना चाहूंगा। सबसे पहले कोई भी इंडस्ट्री जब डिसाइड करती है कि कहाँ पे इंडस्ट्री लगाई जाए, तो उसमें 4-5 चीजें बहुत जरूरी होती हैं। एक तो लैंड अवेलेबल है, पावर अवेलेबल है, वाटर अवेलेबल है, कैसा इंडस्ट्रियल सीन है वहां पे, इंडस्ट्रियल पीस है, कैसी गवर्नमेंट मशीनरी है, कैसे पॉलिटिकल सपोर्ट है। ये सारी चीजें जो है मैं अपनी तरफ से आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, तो जिसके कारण से हम लोग बिल्कुल कमिटेड रहते हैं मध्य प्रदेश में। मैं अपनी एग्जांपल देना चाहूंगा कि हमने मध्य प्रदेश में 1985 में पीतमपुर में हमारा एक पायनियर यूनिट ट्रक बनाने का प्लांट लगाया था, एक प्लांट लगाया था। उसके बाद अभी हमारे मध्य प्रदेश में 8 प्लांट हैं। हमारी जितनी भी एक्सपेंशन हुई है वो सारी मध्य प्रदेश में हुई है। हमने मध्य प्रदेश में कोई ऑलरेडी 7,000 करोड़ के करीब इन्वेस्ट किया है, और ऑटो सेक्टर में होने के कारण से एक बार जब OEM आता है स्टेट में, तो उसकी जो एंसिलरीज हैं और उसकी जो दूसरी फैक्ट्रीज हैं जहां दूसरे MSMEs हैं वो बहुत आते हैं। तो हमारे साथ 150 से ज्यादा छोटी कंपनियां जुड़ी हुई हैं, एंसिलरी जुड़ी हुई हैं, जो हमारे को सप्लाई करती हैं।
और उसके कारण से जितना इकोसिस्टम डेवलप होता है तो उससे बहुत फायदा होता है। अभी हमने भोपाल में नया प्लांट लगाया है 2 साल पहले ही। और दूसरी हमारे लिए बहुत दूसरी गर्व की बात यह है कि मध्य प्रदेश एक फाइनेस्ट एग्जाम्पल है हमारे लिए, मेक इन मध्य प्रदेश फॉर द वर्ल्ड। हमारा वोल्वो ग्रुप से कोलैबोरेशन है, पिछले 15 साल से ज्यादा हो गए। हम यहाँ से पीतमपुर प्लांट से वोल्वो ग्रुप के लिए यूरो 6 के इंजन 2013 से बना के पूरे यूरोप में सप्लाई कर रहे हैं, यूरोप में, जापान में और एशिया में। तो दिस इज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मेक इन मध्य प्रदेश फॉर द वर्ल्ड, जिसमें हम पूरे जो वोल्वो के ट्रक्स दुनिया में चलते हैं उसमें जो इंजन लगते हैं वो पीतमपुर के बने हुए हैं। तो इस बहुत बड़ी हमारे लिए ये गर्व की बात है। और जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो है काफी ग्रो कर रही है और आगे से और भी ग्रो करेगी। तो इसका मतलब है ऑटो इंडस्ट्री जो है वो और भी ग्रो करने वाली है। तो ऑटो इंडस्ट्री की जो ग्रोथ के लिए हमारा जो ग्रोथ आगे से स्कोप है वो भी बहुत ज्यादा है। तो हमारी जो भी इन्वेस्टमेंट आएगी वो मध्य प्रदेश में आएगी। हम ऑलरेडी जहां पे 1500 करोड़ का एक्सपेंशन प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और हमारा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने का प्लान है, जो इलेक्ट्रिक ट्रक्स और इलेक्ट्रिक बसेस, हमने बाहर इलेक्ट्रिक बस और इलेक्ट्रिक ट्रक डिस्प्ले भी किया है, आप लोग सब मौका मिले तो देखिएगा। वो मध्य प्रदेश में हमारे बग्गल प्लांट में बस बनती है और ट्रक हमारा जो बनेगा वो हमारा भोपाल के प्लांट में बनेगा। तो मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा फायदे हैं आने के। मैं आप सबको आह्वान करूंगा कि आप मध्य प्रदेश आइए और मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करिए, आप सबको बहुत फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। 1985 से जो आपकी मध्य प्रदेश में निवेश करने की यात्रा शुरू हुई, अभी भी जारी है। यह यहाँ के एक बहुत ही अनुकूल वातावरण की तरफ बहुत कुछ कहती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके विचारों के लिए। नाउ मे आई रिक्वेस्ट डॉक्टर राघवपत सिंघानिया जी, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ JK सीमेंट लिमिटेड, फॉर हिज व्यूज। फेरो अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड। थोड़ा ठीक हुआ साहब, आप बोलिए जी। ताली वाली बजाएं भैया जरा जोरदार तरीके से। झाबुआ तक का हमारा संपर्क यहीं से हो रहा है जी। बताएं डामोर साहब। SMO फेरो अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड की है। हमारी ये 1100 करोड़ की यूनिट है। इसमें से हमारा 200 करोड़ की यूनिट रतलाम का एक शिवगढ़ गांव है, वहां लगेंगे और बाकी काम हमारे यहाँ मेघनगर में होगा। और इससे हमारे करीब करीब 400-500 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जोरदार ताली बजाए। 400-500 लोगों को रोजगार मिलेगा। बड़ा इन्वेस्टमेंट है। मंत्री जी से बात कराएंगे जी। निर्मला जी। जी भाई साहब नमस्कार। जी 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 बता। जी भाई साहब, बहुत अच्छा यहाँ शुरुआत हुई है और खासकर हमारे आदिवासी क्षेत्र में रोजगार में मिलेगा हमारे सभी भाइयों को। बहुत अच्छे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी बहुत धन्यवाद। बताएं। धन्यवाद श्रीमती निर्मला भूरिया जी का भी। और अब अगले क्षेत्र की ओर दकाचिया इंदौर, वहां से जुड़ते हैं। वहां पर दकाचिया माननीय मंत्री तुलसी सिलावट जी बैठे हैं यहाँ पे। माननीय तुलसी जी भैया बताएं जरा कौन से किस कार्यक्रम में बैठे हैं आप। इस पवित्र काम के लिए आपने महाकाल की नगरी में जो संकल्प लिया है, आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। यहाँ रिलायंस ग्रुप द्वारा 150 करोड़ की जो पराली होती है हमारे खेतों में, उससे जैविक खाद और बायोगैस बनेगी और कम से कम सैकड़ों की संख्या में रोजगार मिलेगा। इसलिए मैं पूरी सावेर विधानसभा की ओर से, डकाचिया की ओर से ओजस्वी तेजस्वी कर्मठ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का आभार मानता हूं। बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद तुलसी भैया। ये इंदौर जिले के सांवेर में रिलायंस इंडस्ट्री का कार्यक्रम था। आगे किस तरफ चल रहे हैं?
अब रायसेन कार्यस्थल से जुड़ते हैं, वहां पर हमारे साथ वेल्सपन रायसेन। मेरे को तो देवास। हेलो, माननीय सांसद जी दिख रहे हैं? नमस्कार साहब। ये तो देवास वाले दिख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर प्रभुराम चौधरी। अच्छा, प्रभुराम जी रायसेन, ठीक ठीक, पूर्व चिकित्सा मंत्री राम जी और डॉक्टर प्रभुराम जी बात कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाए। रायसेन से मंत्री जुड़े हुए जी, बहुत धन्यवाद। कौन सी इंडस्ट्री है जरा बताएं। मुख्यमंत्री जी, ये माइक थोड़ा दूर कर लो, थोड़ा सा दूर करो, साफ समझ में आएगी। हाँ जी, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे विधानसभा क्षेत्र के ग्राम जमनिया में 400 करोड़ की इंडस्ट्री जो सिंटेक्स एडवांस प्लास्टिक वेल्सपन वर्ल्ड के द्वारा यहाँ पर आज भूमि पूजन आपके कर कमलों से हो रहा है। वेल्सपन के द्वारा अभी कुछ दिन पहले ही एक वर्ष से ज्यादा हो गया है, यहाँ पर 700 करोड़ की एक पाइप की और इंडस्ट्री लगाई गई थी जिसमें 500 लोग काम कर रहे हैं। और यहाँ पर भी सांची विधानसभा क्षेत्र में ये इंडस्ट्री आपके आशीर्वाद से यहाँ पर आज भूमि पूजन हो रहा है। 320 लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा और जो सिंटेक्स एडवांस प्लास्टिक कंपनी ये बनाएंगे यहाँ पर, तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों के लिए भी यहाँ रोजगार उत्पन्न होंगे। बहुत बहुत बधाई आपको। रायसेन से डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी ने विस्तार से बात की। मैडम अब आगे बढ़ाएं। बहुत अब देवास से, वहां पर TACC ग्रुप देवास से मंच पर भी हमारे साथ हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रणाम करता हूं। मैं देवास शाहजहांपुर लोकसभा क्षेत्र के ग्राम सरसोदा में तहसील सोनकच्छ में जो इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप किया गया है, वहां पर LNJ भिलवाड़ा ग्रुप के द्वारा TACC कंपनी की स्थापना के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम आपके मार्गदर्शन में आयोजित किया गया है। यहां पर बैटरी ग्रेफाइट एनोड का निर्माण होगा, इसका इलेक्ट्रिक व्हीकल में उपयोग किया जाता है। 1850 करोड़ रुपए का निवेश यहां पर किया गया है। आपके मार्गदर्शन में जब यहां पर यह इंडस्ट्री रन करेगी तो 400 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मिलाकर लगभग 1500 लोगों को यहां पर रोजगार प्राप्त होगा। मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं। माननीय सांसद देवास शाहजहांपुर को बधाई। यह पूर्व न्यायाधीश थे, सर्विस छोड़ के सांसद बने और अब ये इंडस्ट्री के उद्घाटन में हमारे सबके साथ आए। एक बार जोरदार ताली बजाएं माननीय पूर्व न्यायाधीश महेंद्र सिंह जी के लिए। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद बना रहे। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब नीमच, वहां पर गोल्ड क्रेस्ट सीमेंट, वहां से जुड़ते हैं दिलीप परिहार जी, माननीय विधायक ओम प्रकाश सकलेचा जी, पूर्व मंत्री। नमस्कार। माइक थोड़ा सा दूर रख लो ओम जी। ओम जी थोड़ा सा माइक। मध्य प्रदेश का सबसे फास्टेस्ट काम शुरू करने वाला 5 महीने में थॉट प्रोसेस से जमीन अलॉटमेंट तक सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट और अगले 2.5 साल में प्रोडक्ट का प्रोडक्शन शुरू करने का कमिटमेंट के साथ गोल्ड क्रस्ट सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने काम शुरू करा है। मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि शायद आपके मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहला लैंड अलॉटमेंट का इतना बड़ा पीस आपने किया और आज ये भूमि पूजन के साथ काम की शुरुआत कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई ओम जी। चावद और नीमच दोनों विधानसभा को बीच में मिलाते हुए ये प्रोजेक्ट है और इसी के साथ हमारा फर्नीचर क्लस्टर का काम भी मेरा ख्याल है अगले 5-7 दिन में शुरू हो जाएगा। मैं उसकी भी आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपको भी बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। माननीय दिलीप जी विधायक नीमच, आपको भी धन्यवाद। अब हमारे पास बहुत लंबी लिस्ट है, 2-3 से ही बात कर पाएंगे, लेकिन मेरी अपनी ओर से बधाई। एक बार जोरदार ताली बजा करके
आपके सारे अच्छे यूनिट के बधाई। बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा भाई साहब, धन्यवाद आपको, दुआ मिलेगी। बहुत अच्छे। बेरोजगारों को रोजगार देने पे धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिर में जुड़ते हैं रीवा उद्योग विहार। रीवा से सांसद जनार्दन मिश्रा जी, आपको भी बधाई। बताएं जनार्दन जी। सांसद जी बोलिए, आवाज नहीं आ रही है। वो तो माइक की दिक्कत है, खड़ा होने बैठने से फर्क नहीं पड़ेगा। आवाज नहीं आ रही है। यदि हम कोई बात नहीं, हमारी आपको बधाई। एक बार जोरदार ताली हो जाए रीवा यूनिट के लिए। आगे बढ़ाएं अपनी मोदी की गारंटी, आगे विकास के कार्यों को आगे ले जाएं। जोरदार ताली बजाएं मोदी जी के लिए। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अनेक यहाँ पर सौगात सभी को दी गई है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हो गया? हाँ जी सर। और ऐसे काफी लोग जुड़े होंगे, हाँ जी। लेकिन अब हमारा दूसरा सेशन चालू होने वाला है। एक बार जितने लोग जुड़े सबके लिए तालियां बजा दो। ये बहुत बड़ा स्क्रीन है, बहुत सारे लोग अलग अलग पूरे प्रदेश से, हर जगह से अपने अपने क्षेत्र के नए उद्योग के भूमि पूजन लोकार्पण के लिए इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेश के सारे भाई बहनों को, सारे उद्योगपतियों को, सारे श्रमिक बंधुओं को और हमारे अपने विधायक, सांसद, मंत्रीगण इस पूरे आयोजन में जुड़े हैं, मेरे अपनी ओर से सबको बधाई। अभी मैं केवल यहां खत्म कर रहा हूं, मेरा मूल भाषण बाकी है, तो आप लोग भी जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो 23 क्षेत्रों से यहाँ पर जो लोग जुड़े हैं वो सभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उन सभी को बधाई, शुभकामनाएं। और देवी सज्जनों, आप जानते होंगे कि ODOB, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल है जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू किया गया था। मध्य प्रदेश में उद्योग की शुरुआत वर्ष 2020 में की गई। प्रशासन द्वारा उद्योग बिजनेस डायरेक्टरी तैयार की गई है जिसमें हर राज्य और मध्य प्रदेश के सभी जिलों में होने वाले निर्यात के बारे में जानकारी दी गई है और मध्य प्रदेश के विक्रेताओं के बारे में भी जानकारी दी गई है जो उन उत्पादों को बेचते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करती हूं कि आप मध्य प्रदेश की उद्योग बिजनेस डायरेक्टरी का विमोचन करें। May I request everyone also on the stage to please join. देवी सज्जनों, ODOB योजना के तहत हर जिले से कुछ खास उत्पादों की पहचान कर प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट का अपना एक डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्लान बनाया गया है। जैसे कि उज्जैन से बाटिक प्रिंट, इंदौर से आलू, शाजापुर से प्याज आदि। उद्योग का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना और विशेष उत्पादों के विकास को प्रोत्साहित करना जिससे उनकी गुणवत्ता में सुधार हो और उनका बाजार में प्रसार बढ़े। और अब मैं आमंत्रित करती हूं आदरणीय श्री चैतन्य काश्यप जी को, माननीय सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री। उनसे निवेदन है सम्मानित सभा को संबोधित करने के लिए। धर्म नगरी आध्यात्म की आधारशिला रखने वाले उज्जैनी में आज रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का जो समावेश और जिस तरीके से यह आयोजन आज यहां किया जा रहा है, इसके दृष्टा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी
एवं मंचासीन, क्योंकि कई प्रमुख देश के हमारे व विदेश से भी आए हुए उद्योगपति यहां उपस्थित हैं। मैं उन सबका बहुत स्वागत करता हूं तथा यहां उपस्थित समस्त उज्जैन क्षेत्र के, क्योंकि जो पहला रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आज यहां हो रहा है, इसमें उत्साह के साथ में पूरे उज्जैन संभाग के हर जिलों से हमारे उद्यमी लोग आए हुए हैं और उसी के साथ में देश भर के कई उद्यमी जो मध्य प्रदेश की ओर देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के विकास को देख रहे हैं, वे आज यहां उपस्थित हैं। मैं मध्य प्रदेश शासन की ओर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज आपने देखा मध्य प्रदेश अब उन राज्यों में से नहीं है कि जो तैयारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश अब भविष्य के लिए तैयार है। फ्यूचर के लिए हम पूरी रचना बना करके आप लोगों के बीच में आए हैं कि अगला भविष्य जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 2047 तक भारत को डेवलपिंग कंट्रियों के अंदर हमें शामिल करना है। हम अब विकासशील नहीं, विकसित राष्ट्र बनेंगे और अगर भारत को विकसित बनाना है तो भारत के समस्त प्रांतों को भी उसी के साथ में चलना है। और जब उसी का क्रम है कि जब किसी प्रांत को आगे चलना है तो उसमें उसके जिले व उसके उद्यमियों को संपूर्ण क्षेत्र के अंदर एक संतुलित विकास हो। और आज का ये जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है, यह सोच हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की, जिन्होंने पिछले 60 दिन में सिर्फ 2 माह के अंदर जिस तरीके से परिदृश्य को सामने लाए हैं, और यही आज की आवश्यकता है। मेरे पास में प्रणव अदानी जी बैठे थे और उनका एक ही निवेदन था कि हम लोग तो पैसा लगाने को तैयार है, हम कैपिटल ला सकते हैं, परंतु लगवाने वाले में गति चाहिए, वो निर्णय की क्षमता चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मंचासीन सभी अतिथियों को और यहां पर उपस्थित सभी हमारे साथियों को कि आपने 60 दिन में मुख्यमंत्री जी की कार्यप्रणाली को देखा है और जो गति देश के विकास में चाहिए उससे भी हम तेज गति से मध्य प्रदेश को आगे लाएंगे। और आप लोगों के लिए सहयोग में मध्य प्रदेश की सरकार, आज हमारे चीफ सेक्रेटरी यहाँ है, हमारे एमपीआईडीसी के चेयरमैन भी यहाँ पर है, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। हमने जो योजनाएं तैयार करी है उन योजनाओं को धरातल पे उतारने के लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं। और एक बात आपके बीच में मैं रख दूं कि जो दृष्टिकोण आज यह विक्रम उत्सव 18 वर्ष पूर्व हमारे मुख्यमंत्री जी ने उज्जैन में प्रारंभ करा था, आज विक्रम उत्सव के साथ में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और विक्रम व्यापार मेला, सिर्फ 1 माह पूर्व ग्वालियर व्यापार मेला जो 1 साल पिछले 100 सालों से चल रहा था, उसके उद्घाटन में हम लोग गए थे और वहीं से उन्होंने निर्णय लिया, तत्काल निर्णय, कि मध्य प्रदेश के हर रीजन के अंदर हम इस तरीके के व्यापार मेले और इंडस्ट्री कॉन्क्लेव लगाएंगे, जिससे हमारे मध्य प्रदेश के हर क्षेत्र में विकास की गंगा बहे। और इसका आपने प्रत्यक्ष उदाहरण देखा होगा कि अभी जो आपके सामने हमारे कई बंधु जुड़े थे, ऑनलाइन जो हो रहे थे, जिसमें झाबुआ क्षेत्र के भी थे, रीवा क्षेत्र के भी थे, कई हमारे आदिवासी अंचलों के बंधु थे, कई खेती किसानी के इलाके के बंधु थे। तो हर जगह पर एक संतुलित विकास के साथ में मध्य प्रदेश आगे बढ़े। और अब तो समय बदलाव के ऊपर है, बहुत बड़े बड़े अवसर हमारे बीच है। और मुझे
एमएसएमई का, सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योगों का दायित्व तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया है। मैं निश्चित उन्हें धन्यवाद देता हूं कि मैं स्वयं एक उद्योगपति हूं और उन्होंने यह समझ करके कि उद्योगपति क्या आवश्यकता है, उद्योगपति अगर मंत्री रहेगा तो उसे उद्योगपतियों को जवाब देने में भी थोड़ा सहूलियत रहेगी और उन्होंने मुझे दायित्व दिया है। निश्चित आज मैं उस दूरी को दूर करने के अंदर हूं कि उद्योगपतियों के अंदर जो मंशा है, उद्यमियों के मन में जो मंशा रहती है, और आज हमने जब भी हम देखते हैं, बैठते हैं, तो यही निर्णय करा है कि अब हमारी सरकार उद्योगों को सिर्फ सब्सिडी देने वाली सरकार नहीं रहे। हमारी सरकार उद्योगों को आगे बढ़ाने में एक सहयोगी व मित्र की, एक सलाहकार की भूमिका में रहे। और आपका प्रत्यक्ष उदाहरण इसका देखा होगा कि जिस गति से भूमि के आवंटन के कार्य, सब्सिडी के कार्य, जिस गति से हमारे पास बड़े उद्योगों के प्रस्ताव आते हैं, और बड़े उद्योगों के मामले में तो मध्य प्रदेश की नीति आपके बीच में है कि हम उद्योग से प्रस्ताव लेते हैं, वह क्या चाहता है और उसके अनुसार हम यह निर्णय लेते हैं। और एमएसएमई के लिए हमारे पास में आपने देखा होगा कि जो 40% की कैपिटल सब्सिडी का जो हमारा पूरा जीएसटी के बाद में मॉडल बनाया है, यह मॉडल पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश सबसे पहला प्रांत है जो 40% सब्सिडी देता है। किसी भी राज्य में सब्सिडी आज भी उपलब्ध नहीं है। तो निश्चित रूप से इन नीतियों के साथ में हम आगे हैं और नीतियों के अंदर निरंतर बदलाव देता है। और हमारा तो अपने भारत का इतिहास, ये ध्येयवाक्य अलग अलग धर्मों ने अलग अलग प्रकार से इसको अपनाया, लेकिन वो मूल ध्येयवाक्य जियो और जीने दो। लेकिन जियो और जीने दो में हम अपनी इतनी बड़ा दिल रख के चलते हैं कि इस पूरी समूची पृथ्वी को वसुदेव कुटुंबकम की तरह जानते हैं कि पूरी वसुधा ही हमारा कुटुंब है। हम सबसे प्रेम करना जानते हैं और प्रेम का पहला आधार परस्पर आत्मीयता, भाईचारा, एक दूसरे को लेके चलने का अवसर खोजना। और उस अवसर खोजने में एक दूसरे का साथ देने में अर्थव्यवस्था के बिना काम नहीं चलता है। और अर्थ में समर्थ हो जाए तो संसार उसी में से सृष्टि की एक नई कोपल फूटता दिखता है। और जब कोपल फूटती दिखती है, हमको ध्यान में आता है, तो ये जो वर्तमान का दौर है हम सब देख रहे हैं। अभी दुनिया एक तरह से दो हिस्सों में बढ़ती दिखाई दे रही है। एक तरफ दुनिया कैसी जा रही है, एक ही देश के दो हिस्से हुए बाद में, रूस और यूक्रेन। धन वैभव संपदा में वो रूस कोई कमजोर नहीं था, लेकिन मूल थाट थी अंदर की जो आत्मीयता और एक दूसरे को दबाने का जो भाव जब चढ़ता है, अपनी कई कारणों से, अपने बहुत सारे बात के जब डेवलपमेंट होते हैं तो बिना बात के भी एक दूसरे से दूरियां होती जाती। ऐसे समय में रूस यूक्रेन देख लो और भी अलग अलग देश देख लो, ताकत के भरोसे से आप सबको अपने पास दबा लोगे, परस्पर लड़ाई झगड़ा चालू होता है, तो निश्चित रूप से हमारे यहां से ऐसा कहा जाता कि जिस घर में झगड़े हो, लक्ष्मी जी कभी पसंद नहीं करती वहां रहना। लक्ष्मी जी का निवास वही हो सकता है जहां परस्पर शांति हो, सद्भाव हो, प्रेम हो, स्नेह हो। तो हमारे पास यह आदिकाल का अपना एक सिद्धांत तो हो सकता है, लेकिन काल के प्रवाह में ये सारी व्यवस्थाओं के लिए जो चलाने के लिए तंत्र की आवश्यकता पड़ती, जिसको शासन तंत्र या प्रशासन तंत्र कहते हैं। मैं आज ये इस स्थान पर बैठ करके वो बात इसलिए कह रहा हूं कि हमारे तो अतीत के काल के उदाहरण भी ऐसे ही है। उन उदाहरणों के बारे में ठीक से जानकारी दे दें तो मजा आएगा। जैसे विक्रम संवत की शुरुआत जो होती है, हमारे यहाँ तो सन की शुरुआत भी होती है, तो वो कैसे होती है और काय के लिए होती है? आप बताओ, विक्रमादित्य ने बड़ा पराक्रम से शासन खड़ा कर लिया, ताकत के बलबूते पर व्यवस्थाओं को अपने अनुकूल खड़ा कर दिया, लेकिन प्रशासन के साथ जनता को खड़ा करने के लिए, व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए उनने जो सबसे बड़ा काम किया वो ये किया कि उनके प्रशासकीय क्षेत्र में, पूरे भूभाग में सबका कर्जा अपने पास से माफ कर दिया। जिसके पास इतना सामर्थ्य हो
कि जो वो सब हमारे यहाँ संवत की प्रारंभ करने के अधिकार किसको है, उन्हीं को है। इसलिए विक्रम संवत जब प्रारंभ किया, उनने कहा कि जिसके ऊपर भी कर्जा है सब अपने बही खाते लेकर के आ जाओ, और सारे लोगों का कर्जा उनने अपने एक झटके से अपने कोष से उठा के दान करते हुए सबको माफ कर दिया, तो कोई कर्जदार नहीं हो। उसके बाद ये तो हुआ कर्जा माफ करने वाला घटनाक्रम, लेकिन उससे भी बात नहीं बनती। उन्होंने कहा अभी तो कर्जा माफ करा, इतना नहीं, तब भी संवत चलाने का अधिकारी वो नहीं हो सकता है। फिर उन्होंने कहा अब हमको काम धंधा फिर चलाना है, तो कर्जे में चला गया वो तो पुराना, अब कैसे चलाएंगे? तो उन्होंने कहा यही तो बात है, अब उतना ही धन और भी दिया कि बिना ब्याज के आप अपना अपना व्यवसाय प्रारंभ करें, अच्छे से चला लें। जिसके पास इतना धन हो, हमारे यहाँ उसके नाम से संवत होता है, ये हमारी संस्कृति है। इसलिए विक्रम संवत जो प्रवर्तन करता है, अपन कल्पना कर सकते हैं कि कोई कितना धनी होगा, लेकिन धनी होने से बड़ी भावना क्या है कि शासनकर्ता का उदार मना होना भी जरूरी, उसका इतना क्लियर थाट होना चाहिए कि ये शासन की व्यवस्थाओं के साथ इन व्यवस्थाओं को चलाने के लिए जब तक शासन के प्रशासक का मन नहीं होगा, व्यवस्था कभी सुव्यवस्था में नहीं बदल सकती। इसलिए ये व्यवस्थाओं में, सुव्यवस्था में अभी अपन बात करेंगे तो ये विंडो पे जाते ही हर कोई चाहता कि मैं अपना काम धंधा बढ़ाऊं, कौन चाहता कि नहीं बढ़ाऊं, लेकिन काम धंधा बढ़ाते बढ़ाते दिमाग आता कि सरकारी चक्कर लगा लगा के भैया धंधा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। और धंधा बढ़ने के लिए जो जरूरी चीज क्या होती है कि बीच की जो अलग अलग कड़ियां हैं, इन कड़ियों की अनुकूलता होना चाहिए। इनके साथ जब हम खड़े दिखाई देते हैं तो शासन का कोई भी तंत्र अगर शुद्ध मन से, वो भी तो इतना खराब नहीं, लेकिन खराब होने में कई सारी बीच की जो कई कमियां हो जाती, कई सारी गड़बड़ियां हो जाती है। लेकिन माननीय मोदी जी के लिए अभिनंदन करो आप वर्तमान के दौर में, जिनने भारत को कहां ले जाके खड़ा करा, हमारे अपने देश के अंदर नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करते करते, नई व्यवस्थाओं के लिए। तो भारत के मामले में क्या होता था, भारत के मामले में आमतौर पर सारे वो उपमाएं जिसके कारण से हम लज्जित हो सकते थे। भारत मतलब भयंकर भ्रष्ट देश, भारत मतलब आलसी देश, भारतवासी ऐसे वैसे, पता नहीं कितनी भारत का ये मोदी जी का काल नहीं, थोड़ा सा आजादी के टाइम की बात कर लें। अन्यथा क्या कारण है, देश आजाद हुआ था तो हमारे डॉलर की और रुपये की कीमत बराबर थी, क्या अंतर था उसमें? लेकिन काल के प्रभाव में हम पिछड़ते गए। आज हमारा 1 रुपया 1 डॉलर की तुलना में कहां खड़ा है? लेकिन वो बातों का जवाब उल्टे ढंग से भी ले लो। आज काल के प्रभाव में हमारी अर्थव्यवस्था मोदी जी के समय 11वें नंबर पे थी, लेकिन केवल 10 साल के कम समय में आज 5वें नंबर पे आई कि नहीं आई, ये व्यवस्था का बदलाव आया। डिजिटल जितने प्रकार के इनोवेशन किए हैं, आज आप जो व्यवस्थाओं के बलबूते पे चलने की बात, अभी हमने इसका टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। इसलिए हमने कहा कि ये हमने अच्छी बात है, पहले एक समिट होती थी, इंदौर में हो जाएगी और कहीं हो जाएगी, लेकिन इसको रीजनल लेवल पे भी कर सकते हैं। आज मध्य प्रदेश के अंदर बड़ी संभावना है और उस बड़ी व्यवस्थाओं के आधार पर आज यहाँ कर रहे हैं, कल जबलपुर करेंगे, रीवा करेंगे, ग्वालियर करेंगे। और करने के लिए केवल कर्मकांड नहीं करेंगे, करने के साथ यहीं से भूमि पूजन लोकार्पण करेंगे ताकि हमारे काम का आधार दिखाई दे। हमने जो किया है उसको दिखना भी तो चाहिए, सामने भी तो आना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता, 1 लाख करोड़ का व्यवसाय का आज ये इतिहास बन रहा अपने इस समिट में, ये 2 दिन का बड़ा परिणाम है। और इसके अलावा भी मैं जो देख रहा था कि लगातार हम जिस ढंग से बढ़ रहे हैं, आज जो किया गया है लगभग हमारे अपने उज्जैन, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रीवा, सागर, जबलपुर, नर्मदापुर 10,000 करोड़ की लागत से 57 औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण, भूमि पूजन, जिसमें 16,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा प्रत्यक्ष। ये अपने आप में बड़ी बात। लेकिन फिर भी अपन अगर देखें तो हम ये इसके अलावा भी 250 से अधिक औद्योगिक परियोजनाओं के लिए 15,000 करोड़ की भूमि का आवंटन कर रहे हैं। अभिनंदन करें अपने इस नए अभियान के लिए। 15,000 करोड़ की भूमि का आवंटन भले कर रहे हैं, लेकिन इससे 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। क्योंकि कोई काम कर रहे हैं तो उसका यश कैसे मिलेगा, उसका लाभ कैसे मिलेगा। मैं अभिनंदन करना चाहूंगा हमारे अपने अडानी जी का। आपने अभी अपने भाषण में कहा कि उनने 75,000 करोड़ का निवेश की अपने इसी समिट में घोषणा की है। एक बार मैं आपका, प्रणव जी, आपका भी अभिनंदन करना चाहूं।
लेकिन यहाँ मंच पे बैठूंगा और बात करूंगा तो कोई किसी से कम नहीं पड़ रहा। अब तो ये पड़ रहा है कि टाइम कम पड़ रहा है, बाकी सब तो ठीक ही ठीक है। सिंघानिया जी कह रहे हैं आप टाइम दो, मैं भूमि पूजन कराऊंगा पन्ना में चल करके। अगर आनंद बांगड़ जी बैठे उनसे पूछो, वो अपनी अलग इंडस्ट्री के लिए टाइम ले रहे हैं। लेकिन इसीलिए हमने कहा कि बजाय मेरे जो हमारे नेतागण या जो प्रमुख कहीं न कहीं हमारे अपने व्यवस्थाओं से जुड़े, हमारी राजनीतिक दृष्टि से मान चल सकते, जिनका अपने अपने क्षेत्र में पहचान है, उनको जोड़ ले। लेकिन हम और आप मिलकर के टारगेट करें, आज से लेके कल तक मेरी सीएस यहाँ बैठी है, पीएस बैठे, सारे अधिकारी गण यहाँ आए। हमारे ये जो अभी जो प्रयोग किया है, इस प्रयोग को सफल करने के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि बातें कम और काम, ये जो होने की तैयारी के लिए जो मूल मंत्र है, मुझे लगता है कि आज से लेके कल तक जब हमारा एक पड़ाव हासिल करेंगे तो कल तक हम काफी बिजनेस करेंगे। इस अवसर पर मैं पूरे देश से आए हुए सभी मित्रगणों का स्वागत करता हूं, उद्योग जगत की सभी हस्तियों का स्वागत करता हूं। यहाँ का विधायक होने के नाते से, सरकार का मुख्यमंत्री बनने कारण से मेरी डबल भूमिका है। आपको कोई असुविधा हो तो उसके लिए मैं क्षमा भी मांगता हूं, लेकिन कोशिश कर रहे कि छोटे छोटे स्थान पर भी हमारे ऐसे बड़े बड़े आयोजन होना चाहिए जिनके माध्यम से वो किए गए कामों के कारण से जाने जाए। हमारी सुविधा असुविधा में थोड़े कष्ट हो सकते हैं, लेकिन मुझे इस बात का भी आनंद है कि काल के प्रवाह में इस देश के ऊपर जब भी कष्ट आया तो अपने उद्योग जगत के एक कोई भामाशाह भी होते हैं जो महाराणा प्रताप का सिर नीचे झुकाने नहीं देते हैं और देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ धन दे करके देश का गौरव बढ़ाते हैं। ये उद्योग जगत का ऐसे कई गौरव के क्षण हमको सदैव अतीत के काल से मिलते आए हैं। मैं आज आपके भरोसे से निश्चित बोल सकता हूं कि दुनिया जब हमारी तरफ देख रही है तो दुनिया की आबादी भले हो सकती है, हम सब जानते हैं 7 अरब 8 अरब के आसपास, लेकिन उसमें 142 करोड़ लोगों का जो योगदान है, उस 142 करोड़ के योगदान में हमारा औद्योगिक घराना यद्यपि बहुत छोटा सा है, लेकिन आज दुनिया जब 3% की दर से हाँप रही है औद्योगिक जगत की, आज हमारी अपनी जीडीपी की जो ग्रोथ है वो दुनिया को आश्चर्यचकित करने वाली है, क्योंकि परमात्मा ने जो हमको यश दिया है उस यश को हम धारण करें। निश्चित रूप से मेरी अपनी ओर से पूरे आयोजन के लिए पूरे विभाग को, सरकार के सभी मंत्रालयों को, सभी को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। देवी सज्जनों, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहने में नहीं पर करने में विश्वास रखते हैं और यकीनन उनके शब्द सभी को प्रेरित करेंगे सामूहिक रूप से एक उज्जवल कल के निर्माण की ओर आगे बढ़ने की तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और इस कार्यक्रम की समाप्ति पर अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री सुनील चौडिया जी को, पास्ट चेयरमैन CII वेस्टर्न रीजन और चेयरमैन राज रतन ग्लोबल वायर की धन्यवाद प्रस्ताव आप रखें।